Hello everyone. So today we will be discussing regarding this examination, assistant professor exam and CSR and JRF. So currently I am PhD scholar at Indian Institute of Technology Bhubaneswar. So this lecture will deal how to crack this assistant professor exam and also how to prepare for CSIR and JRF and the GATE examination. And if you will follow the lecture, you can easily crack the IIT JAMs because easier questions are asked in IIT JAM. And this will also help you in JEE Advanced and JEE NEET and all kinds of competitive exam. So today I will be dealing the first question to you need to follow the lecture completely. Two matrices A and B are said to be similar. If B equal to P inverse A B for some invertible okay, matrix P. Matrix everybody know. Invertible you need to read it. I have discussed regarding this in the previous lecture. Which of the following statement is true? Statement is not true. ओके, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? ये गेट 2011 में पूछा गया था। एक्चुअली जो एग्जाम्स होते हैं उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के पैटर्न्स बहुत ही फॉलो करते हैं। सो हमको थोड़ा बेसिक से स्टार्ट करना पड़ेगा। मैं बेसिक से ही स्टार्ट करूँगा और टेक्निकली ये मैथमेटिकल फिजिक्स का क्वेश्चन है। सो पहले तो हम 4 ऑप्शन लिख लेते हैं। बोर्ड की कैपेसिटी इतनी ही है, ए और बी हाइट की भी कैपेसिटी। डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट बी, ये डेट मतलब डिटर्मिनेंट भी है, ठीक है। ऑप्शन बी इज ट्रेस ए, ट्रेस ऑफ ए हम निकालना सिखाएंगे। ट्रेस क्या होता है, ट्रेस ऑफ ए, ये प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूँ और ऑनलाइन भी देख सकते हो। ट्रेस ऑफ ए इक्वल टू ट्रेस ऑफ बी। पार्ट सी, A and B have same eigenvector, तो आइगन का जो कॉन्सेप्ट होगा क्वांटम मैकेनिक्स से आता है। So eigen energy is the solution of quantum energy in the prescribed stable states. So वहीं से eigen vector आएगा। तो पार्ट सी है A and B have same eigen vector and the part D A and B have same eigen value. Okay, A and B are same eigen value, same eigen
So eigenvalue is a scalar. Eigenvalue has to do with energy, moment, the scalar quantities. But the eigenvectors are the quantum states. Okay, so you read the see the question carefully. I hope the question is visible. Yes, it's visible. You note down the question. Take sufficient time to note down the question, okay? Because noting down the question is the most important part, and almost every time the answer is present in the question only. You don't need to solve the question carefully, because in this type of competitive exams we have 200 or 100 questions, and to qualify the cutoff for general category we just need maximum 45% marks in the physics. Okay, 45%. If you can pass 45%, you will be there in the top hundreds. And each year the cutoff changes. I am talking about CSIR Net JRF. Each year cutoff changes, but 40 to 45% marks are sufficient for getting the JRF, and also for assistant professor also. So you read the question carefully, note down the question carefully. I will write the solution, and not only I will write the solution, I will write the solution also, and I will explain the solution in detail. Okay, so note down the question. Okay, I need to rub it so that we can proceed further. This was 1 mark question, but this can be a descriptive question also, 5 marks question also, 10 marks question also in UPSC, because it has a in derivation. Any part of the question can become a derivation also. They can ask you to derive the eigenvalue or eigenvector, but I am strictly adhered to the time. So let's write the solution. If the solution, okay, I will give you the short tricks also in the shorts, but here I am writing the solution. If A and P are square matrices. Okay, what is square matrices? मैट्रिक्स, ओके, स्क्वायर मैट्रिक्स। मूवी की बात नहीं हो रही है, मैट्रिक्स की बात हो रही है, ठीक है। मूवी भी आया था 3 पार्ट 4 पार्ट मैट्रिक्स, तो वो भी एक मैट्रिक्स है। क्वांटम मैकेनिक्स के बेस पे वो मूवी बनी है, लेकिन यहाँ पे मैट्रिक्स थोड़ा डिफरेंट है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब अगर इधर 1 2 3 एंट्री है तो इधर 1, ये दूसरा 3 एंट्री, मतलब ये स्क्वायर बनना चाहिए। इधर कितना नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होता है, उसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। दैट इज स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, आई नीड टू रब इट। द स्क्वायर मैट्रिक्स आपको समझ में आ गया होगा। ऑफ सेम टाइप of the same type, and if P inversible, then the matrix A and P, then the
matrix A and B equal to P inverse P A B। देखो ये 1 मार्क का क्वेश्चन था, तो मैं फटाफट सॉल्यूशन लिख रहा हूँ। डिस्क्रिप्टिव भी इसका मैं कवर करूँगा, 10-15 पेज का आएगा, वो लेक्चर बाद में आएगा इवनिंग में, बट ये अभी फॉलो कीजिए। 1 मार्क्स क्वेश्चन है, तो ए एंड बी, बी इक्वल टू बी इनवर्स ए बी, ये हम फॉलो करेंगे। फिर बी इक्वल टू एंड लेट, फिजिक्स और मैथ्स में ब्यूटी ये है कि जब हमको कोई समझ नहीं आता तो हम एक लेट कंडीशन से स्टार्ट करते हैं, कि लेट कंडीशन से चेक करते हैं, क्योंकि वो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन था, ठीक है। तो लेट बी इक्वल टू बी इनवर्स ए बी, यहाँ पे सब मैट्रिक्स है, ठीक है। तो पी इनवर्स उस मैट्रिक्स का इनवर्स मैट्रिक्स, इनवर्स मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं वो आपको पता है बहुत अच्छे से, और नहीं पता होगा तो मेरे प्रीवियस लेक्चर से आप देख सकते हैं। तो वी विल इंट्रोड्यूस मतलब इधर भी है पी इनवर्स ए बी, सो हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करेंगे बोथ साइड। तो बी माइनस लैम्डा आई, बी माइनस लैम्डा आई, तो बी इक्वल टू इक्वेशन 1, ठीक है। बी इनवर्स ए बी माइनस लैम्डा आई, बी इनवर्स माइनस लैम्डा आई, मतलब हमने इसमें कुछ नहीं किया है। एक लैम्डा वैल्यू कांस्टेंट ऐड करते हैं, स्केलर क्वांटिटी, और आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो बी में हम लैम्डा आई माइनस कर दिए, बी इनवर्स ए बी में भी लैम्डा आई माइनस कर दिए, ठीक है। अब हम आगे सॉल्व करते जाएंगे, तो ये बन जाएगा, आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। बी इनवर्स बहुत ही सिंपल ही है ये, बहुत सिंपल मैथ्स कर रहा हूँ मैं, ज़्यादा टफ नहीं है। बी इनवर्स ए माइनस लैम्डा आई बी, देखो यहाँ से बी इनवर्स हम खींच दिए बाहर, और पी बच के आ गया, ठीक है। इसको हल्टी पल्टी करना तो यही आएगा, ठीक है। मैं रब कर देता हूँ बोर्ड, मतलब ये, हाँ, इसको चेंज करना, फिर जो सॉल्यूशन ये तीनों इक्वेशन से जो बनेंगे वो ये 3 इक्वेशन बन जाएंगे, ठीक है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, इससे थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ मैं, ठीक है। सो थोड़ा नोट कर लीजिए ये चीज़। तो आगे भी लिख देता हूँ, मैं पहले ही बता चुका हूँ, वेयर आई इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होते हैं, समझो एग्जांपल के लिए, देखो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, दिस इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मतलब डायगोनल में सबका क्वांटिटी 1, ऐसा मतलब इस टाइप की मैट्रिक्स हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, अब ये b माइनस लैम्डा आई इक्वल टू 0, so b minus lambda I itself is a matrix,
ये एक मैट्रिक्स है, b माइनस लैम्डा आई इटसेल्फ इज अ मैट्रिक्स। बट ये जो हमने सिंबल लगा दिया ये इसका डिटर्मिनेंट है। पहले मैट्रिक्स बनाते हैं फिर उसका डिटर्मिनेंट को जीरो कर देते हैं। तो डिटर्मिनेंट जीरो होगा तो एक मैथमेटिकल इक्वेशन बन के आएगा जिससे कि लैम्डा की वैल्यू फाइंड हो जाएगी और वही लैम्डा की वैल्यू आइगन वैल्यूज होगी क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर। तो हम सीधा सॉल्व करते हैं। is called the characteristics equation। इसी को हम कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन भी कहते हैं। मैथमेटिकल फिजिक्स में जब हम ऐसा इक्वेशन बना लेते हैं तो इसे हम कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन कहते हैं। Okay, so P equal to BP inverse A P have the same characteristics, have the same characteristics have same characteristics, ठीक है। b इक्वल टू इसका सेम कैरेक्टरिस्टिक रूट ये शेयर करते हैं। आप नोट्स को ध्यान से देखिएगा, सॉल्यूशन को हम समझेंगे जाएंगे, ठीक है। तो आप थोड़ा लिख लीजिए, मैं बोर्ड रब कर दूंगा थोड़ी देर बाद। तो आप कुछ नहीं, आप सीधा दो मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट को वो कर देना है। b माइनस लैम्डा आई इक्वल टू p इनवर्स a माइनस लैम्डा आई b, ठीक है। अब डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी यूज कर देना है। डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी आपको बहुत अच्छे से पता है। p इनवर्स बाहर आ जाएगा, ये डिटर्मिनेंट, ठीक है। a माइनस लैम्डा आई ये भी डिटर्मिनेंट बाहर आ जाएगा। यहाँ पे डिटर्मिनेंट के जो रूट्स होते हैं डिटर्मिनेंट को ये प्रोडक्ट में है तो प्रोडक्ट को हम सेपरेट आउट कर दिए। फिर सेपरेट आउट होगा तो फिर ये a माइनस लैम्डा आई बाहर आ जाएगा और डिटरमिनेंट p इनवर्स ये p, ठीक है। तो डिटरमिनेंट p इनवर्स p आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा 3 माइनस लैम्डा आई। a माइनस लैम्डा, ठीक है। ये डिटरमिनेंट आई बन जाएगा, ये कैंसल आउट हो जाएगा 1 में तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा। 1 में नहीं होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा। डिटर्मिनेंट है तो 1 होगा लेकिन बनेगा एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 1 होता है, ठीक है। अब हम सिंस देखो मैं बताया आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट ऑफ ये आप नोट कीजिए, मैं फिर समझाऊंगा। क्वेश्चन का जो मेन थीम है वो बहुत ही एक्चुअली 1 नंबर का क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही लेंथी क्वेश्चन है ये। पहले लिखते जाइए, ये क्वेश्चन थोड़ा राइट अप क्वेश्चन है। 10 द मैट्रिसेस
the matrices A and B P inverse AP have same characteristics इक्वेशन निकल गया है ना, have same characteristics इक्वेशन। देखो इसमें मैथमेटिकल फिजिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स को मर्ज कर दिया गया है क्वेश्चन में। मैथमेटिकल फिजिक्स आप लीनियर स्पेस एंड वेक्टर स्पेस में आप पढ़ते हो, वो काफ़ी अच्छी है। क्वांटम मैकेनिक्स के लिए आप ग्रिफिथ फॉलो कर सकते हैं। लीनियर वेक्टर स्पेस के लिए आर्केन वीवर अच्छा बुक है, वो आप फॉलो कर सकते हैं। और एक HK दास आता है मैथमेटिकल फिजिक्स यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, वो मेरा फेवरेट रहा है। मैं उसी से पढ़ता था क्योंकि वो थोड़ा इजी में समझा देता था। तो हम आगे बढ़ते हैं। सेम कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन एंड लैम्डा डैश 0 आर द कैरेक्टरिस्टिक्स। आर जो लैम्डा निकल के आएंगे सॉल्यूशन में, वो उसे कैरेक्टरिस्टिक रूट्स होंगे। हम इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। अभी ये 1 मार्क्स का MCQ क्वेश्चन आर द कैरेक्टरिस्टिक। Are the characteristics or eigenvalues. Since यही पार्ट इंपॉर्टेंट है, the sum of the eigenvalue of a matrix is equal to trace of the matrix and the product of eigenvalue product of eigenvalues of a matrix is equal to determinant of matrix hence third alternative is that मैं एक बार फिर से ऑप्शन को लिख दूंगा, आप नोट डाउन कीजिए ये क्वेश्चन। आई थिंक आप नोट डाउन कर लिए होंगे। मैं मिटा देता हूँ, ऑप्शन को फिर से लिखता हूँ और बताता हूँ कि ये ऑप्शन गलत जो है, कौन सा ऑप्शन सही है। एंड वी विल डिस्कस लॉट ऑफ थिंग्स।
ये 1 मार्क्स का ही क्वेश्चन था और बेसिकली ये पेन पेपर उठाने वाला क्वेश्चन है नहीं, ये लॉजिक का क्वेश्चन है। ये डेरिवेटिव तो इसलिए करा दिया क्योंकि मैं डिस्क्रिप्टिव मैथमेटिकल फिजिक्स आपको बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा। ऑप्शंस पे आ जाते हैं, ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन, लेकिन ऑप्शन को लिखना जरूरी है फिर से। देखो, डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट बी, ये ऑप्शन ए। सो डिटर्मिनेंट ए और डिटर्मिनेंट बी तो आया ही नहीं, और इतने छोटे से इंफॉर्मेशन में डिटर्मिनेंट ए डिटर्मिनेंट बी तो वेरीफाई कर ही नहीं पाए, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। बी ऑप्शन है, ट्रेस ए इक्वल टू ट्रेस बी, ट्रेस ए इक्वल टू ट्रेस बी, ट्रेस ए इक्वल टू ट्रेस बी भी नहीं आया, लेट करके गया था, तो ये इसलिए ये ऑप्शन भी गलत है। सी ऑप्शन और डी ऑप्शन, सी और डी में डाउट रहेगा, इसलिए हम दोनों को लिखेंगे और दोनों को भी फिर डिस्कस हो सकते हैं। ए एंड बी हैव सेम आइगन वेक्टर, ए एंड बी हैव सेम आइगन वेक्टर, ये सी ऑप्शन है, ठीक है। एंड सी है, डी ऑप्शन है, ए एंड बी हैव सेम आइगन वैल्यू, ठीक है। ये दोनों में कंपटीशन है। सेम आइगन वेक्टर होने का मतलब है कि क्वांटम सिस्टम का जो स्टेट्स है वो सेम है, मतलब एक ही स्टेट्स पे कई पार्टिकल रह सकते हैं। सो आइगन वेक्टर स्टेट्स को डिस्कस करता है, बट आइगन वैल्यू डिस्कस करता है एक पर्टिकुलर एनर्जी को, एक पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन या कोई भी पार्ट सिस्टम के एनर्जी। सो हम जब सॉल्यूशन किए तो ये तो निकल के आया नहीं, तो ये भी गलत हो गया। बचा क्या? ये ये सही। सो ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।